listen. We have two types of cross. Okay, how many types of cross? Two types. One is monohybrid cross, another is dihybrid. Monohybrid cross means cross between the single pair of contrasting characters. Okay, देखो monohybrid cross से हमें क्या मिलेगा? We'll get hybrid offspring. Okay, monohybrid ये देखो capital T and small. It is a monohybrid. Example of monohybrid. Okay, monohybrid cross से हमें ये मिलेगा. Okay, this is called monohybrid. But this is called dihybrid. Okay, तो dihybrid cross से हमें क्या मिलेगा? ये मिलेगा. Okay, and what is dihybrid cross? Cross between two pair of contrasting character. Okay, contrasting character means जैसे tall का alternate क्या होगा? Tall. तो this is called contrasting, मतलब alternate. Okay, तो dihybrid cross क्या है? It is the cross between two pair of contrasting character. जैसे height, plant की height one character, another क्या है? Shape of shape. So when we will cross between their contrasting pairs, ये है homozygous condition में. This parent is homozygous. Okay, tall with round shape. ये क्या है? Dwarf with wrinkle shape. Okay, so these are pure parents. Okay, it is in homozygous condition, and this will produce what? Gametes. इसका gamete क्या होगा? ये होगा, right? कैसे? यहाँ पे दो कैपिटल की है, एक ले लो कॉमन, दो है, एक ले लो. Okay, यहाँ पे फिर से. Now after production of gamete, we have to cross fertilize. We have to cross pollinate them. क्योंकि अलग अलग है ना. ये प्लांट है with this plant is tall with round shape, and ये प्लांट कैसा है? Dwarf with wrinkle shape. एक प्लांट टॉल है, एक डॉर्फ. इन दोनों के बीच क्या होगा? क्रॉस पोलिनेशन. क्रॉस पोलिनेशन की कंडीशन क्या है? प्लांट शुड बी डिफरेंट. ओके, इफ पोलिनेशन ऑकर विद इन दी प्लांट, देन इट इज सेल्फ पोलिनेशन. प्लांट अलग अलग है ना, एक लंबा एक छोटा, राइट? तो अलग अलग प्लांट है, दैट मींस क्रॉस पोलिनेशन. क्रॉस पोलिनेशन होने से क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी होता है. सो आफ्टर क्रॉस पोलिनेशन वी विल गेट दिस ऑफस्प्रिंग. F1 जनरेशन में ये मिलेगा. इट इज इन हेटेरोजाइगस कंडीशन. हेटेरोजाइगस देखो, टॉल ये T एलिन, कैपिटल T एलिन एंड स्मॉल t, ये कैपिटल R स्मॉल. तो हेटेरोजाइगस कंडीशन. ओके, नाउ आफ्टर सेल्फिंग मतलब ये F1 जनरेशन में ये मिला उसको. ओके, when we will self pollinate them. Okay, when we will self fertilize them. Okay, so pollination between the offspring of F1 generation, मतलब दोनों offspring सेम है. देखो ये इसका जीनोटाइप और इसका जीनोटाइप सेम है. ओके, दोनों की जीनोटाइप सेम है. ओके, and when we will self fertilize them, okay, then we will get this result. Okay, but before producing the F2 generation, we have to know about the gametes. Okay, gametes नहीं होने से कैसे बनाएगा? Okay, तो you have to know the gametes. तो gametes कैसे बनाएगा? मान लो ये पेरेंट है. Okay, this is our parent, capital T. Okay, small t, capital R, small. इसकी गेमेट क्या है? फिक्स क्या है? ये दोनों को पहले लिखना. ओके, उसके बाद कैपिटल R एंड स्मॉल r इसको इस फॉर्म में लिखो, राइट? इस फॉर्म में कैपिटल R स्मॉल. तो इसका गेमेट ये होगा, इसका ये, ओके, इसका ये, इसका ये. तो यहाँ पे हाउ मेनी गेमेट्स फॉर्म? 4. इधर में कितना गेमेट्स मिलेगा हमें? 4 गेमेट्स. ओके, 4 गेमेट्स मिलेगा. यहाँ पे कितना मिलेगा? यहाँ पे भी 4. तो 4 into 4 कितना होता है? 4 into 4 16. तो you have to make 16 box. 16 box बनाओ. 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, when gamete will be 4 into 4, then offspring will be कितना 16. और एक एग्जाम्पल मान लो ये है, ओके, या से इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा, इसमें गेमिट कितना होगा, 2 कैपिटल टी है, एक लिखो, उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर इस फॉर्म में लिखो। इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा गेमिट 2, और इसमें कितना होगा 4, 4 into 2 8, तो इसमें कितना गेमिट कितना ऑप्शन मिलेगा 8। ओके, यू हैव टू मेक 8 बॉक्स बनाना है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, इस साइड में 4 गेमिट, इस साइड में 2। ओके, इस तरह से ओके, तो बाय Punnett square box, okay, we will find the offspring of F2 generation. Okay, ये Punnett square box ये ब्रिटिश साइंटिस्ट ने किया था। Okay, it is the graphical representation. This Punnett square box, okay, shows the graphical representation of different type of genotype. अब इसमें देखो, ये मान लो मेल गेमिट है, ये फीमेल गेमिट है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रिंग क्या होगा, बाय फ्यूजन ऑफ दिस गेमिट्स, ये टी कैपिटल टी कैपिटल, इसमें कैपिटल आर कैपिटल, मतलब ये दो गेमिट फ्यूज करके ये बना है, ये और ये फ्यूज करके ये बना है। इसी तरह ये दोनों फ्यूज करके क्या बनेगा, ये। ओके, तो phenotypic ratio of F2 generation is, tell me, phenotypic ratio कितना होगा? 9:3:1. 9:3:1. Okay, 9:3:1. But tell me the phenotypic ratio of monohybrid cross. 3:1. क्या है? 3:1 is the phenotypic ratio of monohybrid cross. तो इसमें phenotype कितना होगा? phenotype कितना होगा? What will be the number of phenotypes? Number of phenotypes कितना होगा इसमें? If the phenotypic ratio is 3:1, then phenotype will be कितना होगा? इसमें कितना होगा? इसमें नंबर ऑफ फिनोटाइप्स, देखो फिनोटाइप मतलब ध्यान से सुनो, ये जो 9 है ना, ये क्या है? टॉल राउंड, देखो दोनों डोमिनेंट है, टॉल प्लांट विद राउंड सीड, ये 9 क्या होगा? ये 9 मतलब दो कैरेक्टर में से एक तुम्हारा क्या होगा? डोमिनेंट होगा। ओके, ये टॉल रिंग क्या है? आया समझ में? देखो ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव, ये रिसेसिव। अभी ट्रिक्स क्या है, इसको भी लिखो, लेकिन पहले लिखो रिंकेल टॉल, आया समझ में? और ये क्या होगा? दोनों गॉड ये 9 क्या है? 9 ऑफस्प्रिंग विल बी टॉल प्लांट विद राउंड सीड। ओके, ये क्या होगा? टॉल विद रिंकेल सीड, टॉल प्लांट विद रिंकेल सीड। और ये क्या है? डॉट प्लांट विद राउंड सीड। ओके, एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव, एक डोमिनेंट, इसमें दोनों ही रिसेसिव है, जैसे एक। आया समझ में? तो नंबर ऑफ फिनोटाइप कितना होगा? 1 2 3 4।
इसमें कितना होगा नंबर ऑफ फिनोटाइप 4। आया समझ में? और एक सिंपल ट्रिक्स समझो कि जितना रेशियो होगा उतना फिनोटाइप 1 2 3 4 4 है ना, तो 4 फिनोटाइप। नंबर ऑफ फिनोटाइप क्या है? 4। इसमें कितना होगा 1 2 फिनोटाइप क्या होगा 2। आया समझ में? है कि नहीं? अभी इसमें देखो जीनोटाइपिक रेशियो कितना होगा? मोनोहाइब्रिड में मुझे बताओ हाउ मेनी व्हाट इज द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस? 1:2:1 1:2:1 एक यूनिटरी मेथड मालूम है ना? इफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ये है रेशियो, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा? 1:2:2 डाइहाइब्रिड क्रॉस में देखो ट्रिक्स क्या है? ये दोनों लेके दो साइड में ये मतलब 1:1 है ना, इसको दो बार लिखो 1:1 लास्ट में लिखो और लास्ट में लिखो। हाँ और मिडिल में क्या रहेगा? ये फर्स्ट 1 ये फर्स्ट ये 1, इन दोनों को प्लस करो क्या होगा? 2। ये दोनों को प्लस करो क्या होगा? 4। ये दोनों को प्लस करो 2 ओके। तो जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस विल बी 1:2:1 1:4:1 1:2:1 1:1 1:1 ओके। ये 1:1 1:1 एंड 2:4 ये ट्रिक्स है। अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइपिक रेशियो ये है तो डाइहाइब्रिड में डबल होगा। ओके, डाइहाइब्रिड में डबल होगा। नंबर 6 हो जाएगा। नंबर ऑफ जीनोटाइप 6 ओके। नाउ नंबर ऑफ जीनोटाइप कितना होगा? कितना होगा? तो ट्रिक्स क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना होगा? 9 ओके। ये जो है ना, ये जो इज मतलब होमोजाइगस कंडीशन में है, राउंड शिप विद मतलब ये दिस वन विल बी दिस और ये क्या होगा लास्ट वाला मतलब यहाँ होगा सी। ओके, आया समझ में? एनी डाउट? पूछो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में तुम्हारा फिनोटाइपिक रेशियो कितना है? 3:1। नंबर ऑफ फिनोटाइप 2। ओके। डाइहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो क्या है? फिनोटाइपिक रेशियो 9:2 फिनोटाइप विल बी 4। देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 2 है फिनोटाइप, यूनिटरी मेथड 2 स्क्वायर। देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप कितना है? 2 है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 2 है। देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 2 है, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में कितना होगा? इसको स्क्वायर कर दो, कितना होगा? 4। जीनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कितना है? 3 की नहीं। हाँ तो इसको डाइहाइब्रिड क्रॉस में कितना होगा? 9 आ जाएगा स्क्वायर 9 होगा। आया समझ? 3 का स्क्वायर 6 होता है, 9 होता है। ओके, सिचुएशन आता है क्या? होमोजाइगस हेटेरोजाइगस। होमो माने सेम, व्हेन एलील शुड बी सेम। देखो होमो हेटेरो वाले हमें क्या होगा? राइट। तो पेरेंट्स शुड बी प्योर, हमेशा याद रखना। तृतीय है हमें ऑफस्प्रिंग की पास हेटेरोजाइगस। ओके, आया समझ में? सो दिस इज द डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस में ये याद रखना, फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो ये याद रखना। ओके, ये सेल्फिंग क्या है? सेल्फिंग माने कि सेल्फिंग माने सेल्फ पोलिनेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ओके, और क्रॉस माने क्रॉस फर्टिलाइजेशन। एक्स वन क्रॉस डाइहाइब्रिड क्रॉस
মানে যেতিয়া তুমি ডাইহাইব্ৰিড ক্ৰছ কৰিবা ইউ উইল গেট ওকে ডাইহাইব্ৰিড অফস্প্ৰিং যেতিয়া ক্ৰছ কৰিবা তেতিয়া তুমি ডাইহাইব্ৰিড অফস্প্ৰিং পাবা ওকে